اب ہمیں کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوگا. اچھا اس کی وجہ ایک جانب تو عدالتی حکم ہے, جی دوسری جانب ہمارے ملک کا سیاسی, معاشی, سماجی استحکام ہے. یہ الیکشن 2024 ایکچوئل ڈیجیٹل الیکشن, میں نے اس کو نام دیا ڈیجیٹل الیکشن. یہ ڈیجیٹل الیکشن ہے. اس سے قبل میں نے 1970 سے لے کے اب تک تمام الیکشن کو دیکھا بھی ہے, اس کا تجزیہ بھی کیا ہے. جو اویئرنیس لیول جیسا کہ آپ نے بتایا آج نوجوان میں ہے, یہ میں نے کبھی نہیں دیکھی. سقوط ڈھاکہ کی خبر آپ کو یاد ہوگا 3 دن بعد عوام کو ملی تھی, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا تھا. یہاں یہ ہے کہ ابھی اگر چیف جسٹس الیکشن کمشنر سے مل رہا ہے تو ہمیں پتا ہے. تو بھاولپور کے جو سیاستدان ہیں موسٹلی آپ دیکھیں نا 2018 سے پہلے اگر آپ غور کریں تو نواب, وڈیرے, مخدوم, ذمہ دار, کچھ صنعت کار, مقصد ایسے لوگوں کے ہاتھ میں سیاست رہی کہ جو اپنے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں, عوام کے بارے میں کم سوچتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھوج کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ مزمل اقبال. آج کے ہمارے مہمان ہیں جاوید ایاز خان صاحب. جاوید ایاز خان صاحب پاکستان کے نامور کالم نگار ہیں اور پاکستان کے مختلف جو جرائد ہیں اس کے اندر انگلش اور اردو, اس کے اندر ان کے آرٹیکل ہوتے رہتے ہیں, اور مختلف ہمارے الیکٹرانک چینلز کے اوپر بھی, یہ ٹاک شوز کے اندر بھی مختلف اپنے اس کے موضوعات کے اوپر اظہار خیال کرتے رہتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا جو ہے سب. تھینک یو. اچھا سر, آپ کا ایک گزشتہ دنوں ایک آرٹیکل نظر سے گزرا جو آپ نے الیکشن کے بارے میں لکھا تھا, اور اس میں آپ نے خصوصاً ذکر کیا ہمارے اس ریاست بہاولپور کی سیاست کا, کہ وہ سیاست ہماری کن ایشوز کے ارد گرد گھومتی ہے. تو ہم بہاولپور کے اوپر آنے سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزمل صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے کھوج نکالا. دوسرے جو آپ نے الیکشن کے بابت بات کی ہے, تو اب ہمیں کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوگا. اچھا. اس کی وجہ ایک جانب تو عدالتی حکم ہے, جی, دوسری جانب ہمارے ملک کا سیاسی, معاشی, سماجی استحکام ہے جو الیکشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر الیکشن وقت پہ نہیں ہوتے تو ملک میں انتشار بڑھنے کا اندیشہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. تو یہ تمام جماعتیں, سیاسی جماعتیں, حکومت اب تک یہ عزم لیے ہوا ہے کہ ہم ٹائم پہ الیکشن کرائیں اور ملک کو عدم استحکام سے بچائیں. تو میری ذاتی رائے یہی ہے کہ الیکشن ہر صورت ہوں گے, کیونکہ الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ دوسرا نظر نہیں آ رہا جو اس ملک کو چلا سکے. تو الیکشن کے لیے آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ الیکشن از ویری نیئر. انشاءاللہ. ہاں جی. اچھا سر, یہ بتائیں جاوید صاحب کہ 1970 سے ہمارے ملک میں جو الیکشن ہو رہے ہیں, ماشاءاللہ وہ سب کو آپ نے قریب سے دیکھا ہے, اپنے شعور میں تھے آپ. 1970 سے جو الیکشن ہوئے اور یہ جو 2024 کا الیکشن ہونے جا رہا ہے, اس میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک تو سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو اویئر بہت کر دیا ہے, اور دوسرا اس میں ہماری جو پاپولیشن ہے وہ بھی اس وقت تقریباً 60% نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے, اور یہ آئندہ الیکشن کے اندر نوجوانوں کا جو ووٹ ہے وہ ایک فیصلہ کن جو ہے اپنی ایک برتری رکھتا ہے, حیثیت رکھتا ہے. تو ہمارے جو یہ روایتی سیاستدان ہیں جو سالہ سال سے پشت در پشت یہ سب ہمارے وڈیرے, مخدوم, لغاری, خان, گدی نشین چلے آ رہے ہیں, یہ 2024 میں انہیں کچھ ان کا طریقہ کار کوئی تبدیل ہوگا, یا انہیں یہ آگے نوجوانوں کے سے کمپین کے دوران کوئی
रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा उन्हें। एग्जैक्टली मैंने अपने कॉलम में, अगर आपने मेरा कॉलम पढ़ा है तो उसमें मैंने ये बात लिखी है कि ये इलेक्शन 2024 एक्चुअल डिजिटल इलेक्शन, मैंने इसको नाम दिया डिजिटल इलेक्शन। ये डिजिटल इलेक्शन है। इससे कबल मैंने 1970 से लेके अब तक तमाम इलेक्शन का को देखा भी है, उसका तज्जिया भी किया है। जो अवेयरनेस लेवल जैसा कि आपने बताया आज नौजवान में है, ये मैंने कभी नहीं देखी। एक मामूली पढ़ा लिखा आदमी भी अपने हाथ में मोबाइल रखता है और मोबाइल पर सोशल मीडिया से वो इस कदर हम आहंग हो चुका है कि वो पल पल की खबर उसके पास पहुंच रही है। सकूत ढाका की खबर आपको याद होगा 3 दिन बाद आवाम को मिली थी, इतना बड़ा सान्या हो गया था। यहाँ ये है कि अभी अगर चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर से मिल रहा है तो हमें पता है कि इस वक्त मुलाकात जारी है। तो ये सोशल मीडिया का कमाल है। और नौजवान जो है वो अवेयरनेस उसमें इस कदर आ चुकी है कि जो मैं उसे इंकलाब कहता हूँ, डिजिटल इंकलाब। एक डिजिटल इंकलाब आया है कि वो बाखबर है, उसमें सियासी शऊर के साथ साथ खबर भी रखने का रुझान जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया। हर मिनट के बाद वो नेट चलाता है, वो देखता है, वो ट्विटर पे है, वो फेसबुक पे है, वो व्हाट्सएप पे है, उसको व्हाट्सएप आ रहे हैं, वो उसकी अवेयरनेस लेवल इस वक्त बहुत बुलंद है। जहां तक रहा हमारे भावलपुर के सियासतदानों का ताल्लुक, तो भावलपुर के जो सियासतदान है मोस्टली आप देखें ना 2018 से पहले अगर आप गौर करें तो नवाब, वडेरे, मखदूम, जिम्मेदार, कुछ सनतकार, मकसद ऐसे लोगों के हाथ में सियासत रही कि जो अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, अवाम के बारे में कम सोचते हैं। अच्छा, अवाम से वोट लेना उनके लिए इसलिए आसान हो जाता है कि लोगों की अवेयरनेस लेवल वो नहीं था जो आज हो गया है। अच्छा, एक दूसरी चेंज ये आई है कि जो आपने 60% का, मैं इसे थोड़ा बढ़ाता हूँ, 65% नौजवान है और तकरीबन 2.5 करोड़ नौजवान इस इलेक्शन में एडिशन होने जा रहा है। सही, इस इलेक्शन में वो वोट कास्ट करेगा, वो वोट कास्ट करेगा। उसका वोट जो है वो बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी चेंज है। वो इस हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो हम जैसे, बल्कि हमारी नस्ल भी, वो इन बुजुर्गों का, इन वडेरों का, इन नवाबों का, इनका एहतराम जिस कदर एहतराम करती थी वो आज के नौजवान में नहीं पाया जा रहा। नौजवान को इससे कोई कर्ज नहीं कि आप वडेरे हैं, उसको इस चीज से कर्ज है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। क्या आप 7 करोड़ की गाड़ी से नीचे उतर रहे हैं, ये चीजें उसे इम्प्रेस नहीं करती। ये इम्प्रेस नहीं करती, उसको ये चीजें इम्प्रेस नहीं करती कि आप क्या हैं, उसको ये इम्प्रेस करती है कि आपने क्या किया है। अभी मैं एक बैनर मैंने लगा हुआ देखा भावलपुर में, पहली दफा मैंने उसमें जिक्र भी किया कॉलम में, तो उसमें सवाल किए गए हैं कि आपका थाना बदला, क्या आपकी सेहत का निजाम बदला, क्या आपकी फलां चीज बदली। वो एक लंबी लिस्ट नौजवानों ने लगाई और नीचे लिखा है अगर ये नहीं बदले 70 साल में तो अब जरा अपने नुमाइंदे बदल के देख लें। तो मैं समझता हूँ कि इस दफा, जी आप कुछ फरमा रहे हैं, उन्होंने एक सोच दे दी, सोच डेवलप हो चुकी है कि अगर हम, हमारे बुजुर्ग और हम 75 साल में कुछ तब्दील नहीं कर सके तो जरा ये भी बदल के देख लें। हम जी, अगर हम अपनी जो 76 साल तारीख का पाकिस्तान की का जायजा लें, देखें इसे, तो बेशक इसके अंदर कोई जमहूरियत वार रहे या इसमें डिक्टेटरशिप रही, हमारे डिवीजन बहावलपुर के जो नुमाइंदे हैं, जो सियासतदान हैं, जो इधर गद्दिए हैं दरबारों की, या जो इधर वडेरे हैं, ये हमेशा हमें कलीदी ओहदों के ऊपर मिलेंगे तमाम अदवार में, बेशक वो डिक्टेटरशिप हो या जमहूरी दौर हो, कोई पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून की हो, पीटीआई की हो, जो भी हो। लेकिन उसके बावजूद ये हमारी पसमानदगी खत्म नहीं हुई। हम आज भी लाहौर से
50 साल पीछे हैं। हम आज भी फैसलाबाद से, गुजरांवाला से, सियालकोट से, रावलपिंडी से 50 साल पीछे हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी पसमानदगी, हमारे जो जनूबी पंजाब और खसूसन भावलपुर के जो नुमाइंदगान या जो हमारे लीडर्स अब तक असेंबलियों में गए हैं, उनकी पसमानदगी तो दूर हो गई है ना। उनकी पसमानदगी दूर हुई है। उनकी पसमानदगी तो दूर हो गई है। रही आवाम की पसमानदगी, उनकी जो हर हुकूमत में आप देखें कि कोई हुकूमत गिरानी हो किसी भी दौर में, कोई हुकूमत बनानी हो, भावलपुर के जो लीडरशिप है, जो सियासत है, उसका कलीदी किरदार आपको नजर आएगा। और ये लोग किसी ना किसी तरीके से कुर्सी तक रसाई भी हासिल कर लेते हैं। आप देखें कितने गवर्नर्स आपके इलाके से रहे, कितने वज़रा बड़े बड़े आपके इलाके से रहे। अभी भी गवर्नर पंजाब भावलपुर से हैं। अब भी हमारे भावलपुर से गवर्नर पंजाब है। अब अगर इनके होते हुए भी आपकी पसमानदगी दूर नहीं हो पा रही, हमारी पसमानदगी दूर नहीं हो पा रही, तो फिर हमारे नुमाइंदगान ही इसके जिम्मेवार हैं। मेयर आप तो इसके जिम्मेवार नहीं है। इन लोगों ने अपनी पसमानदगी पे शायद ज्यादा तवज्जो दी है अवाम की निस्बत। सही नहीं, इसका तोड़ क्या है? तोड़ क्या है इसका कि इन्हें यानी कि मजबूर किया जाए? इसका तोड़ सिर्फ यही है कि जो हमारे मिडिल क्लास से लीडरशिप है वो सामने आए, नौजवान लीडरशिप सामने आए, जो जज्बा रखे इस इलाके के लिए कुछ करने का। सही बात। और वो मैं देख रहा हूं कि इस दफा शायद आपको कुछ तब्दीली महसूस हो कि नौजवान की सोच बदल गई है। अब वो अपने आप को कंपेयर करता है, जैसे आपने किया फैसलाबाद, लाहौर, कराची से। आप देखें ना, भावलपुर डिवीजन के हर जिले, हर तहसील से शाम को लाहौर की बसें लग जाती हैं, सवारियों के फुल होकर निकल रही होती। किस लिए निकल रही होती हैं? सबका रुख लाहौर की तरफ है। रोजगार के अलावा सबके काम वही है, सेक्रेटरीट वही है, ताकत का सारा मंबा जो है वो वही है। तो जब तक हम इसमें हम जब तक अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, अपने लीडर हम अपने में से नहीं लाएंगे, तब तक शायद ये मुमकिन ना हो सके। और उसके लिए जरूरी है कि हम जैसे तहरीक चली थी जनूबी पंजाब की, आपको पता है, हम इस तरीके से कोई एक अपना अलहदा से सूबा हासिल करने में कामयाब हो जाएं, ताकि हम अपने फंड्स, अपनी चीजें अपने तौर पे इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, मैं आपको तफसील में बताऊंगा। हाँ जी, इसके ऊपर भी हम आते हैं कि ये जो आपने सूबे का जिक्र किया, ये गुज़श्ता अगर हम 18 और 13 का इलेक्शन देखें ना, तो ये हमारे जनूबी पंजाब में सूबा बहावलपुर या जनूबी पंजाब सूबा, या इसके अंदर कोई सरायकिस्तान भी सूबा, नामों के ऊपर इख्तलाफ है, लेकिन उसकी यही चीजें हैं, बुनियाद उसकी यही है। तो ये जो है, ये हमारे सियासतदान, हर सियासी जमात जो है वो हमारे जनूबी पंजाब के अंदर अपनी इलेक्शन का, उनका जो मरकजी नुक्ता होता है वो यही होता है कि जी हम आपको इम्पावर करेंगे। वो हमारे इधर मखदूम अहमद महमूद साहब हों, मखदूम खुसरो बख्तियार साहब हों, हमारे इधर जिला रहीम यार खान के लेवल के ऊपर, आपके अगर उधर बहावलपुर के अंदर आ जाए तो वहाँ नवाब साहबान हो, या बाकी जो दूसरे, ये दुरानी साहब ने भी इसका वो बहुत हिस्सा रहे हैं सुबह बहाली का। ये एक स्टंट के तौर के ऊपर ये चल रहा है, और ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के अंदर ही इस चीज को ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अब हमने ये देखा कि ये आखिरी इन्होंने सेक्रेटरीट बन गया इधर मुल्तान के अंदर, कुछ सेक्रेटरी साहबान भी बैठ गए बहावलपुर के अंदर। अब वो सेक्रेटरी साहबान जितने उनके पास पावर थी, वो भी हमें सबको पता है कि वो एक बराए नाम था, एक उनका वो पॉपेट टाइप थे, वो उनके पास कोई पावर नहीं थी। यानी ये जो लोग हैं, ये जब ऐवानों में चले जाते हैं तो ये सारी चीजें भूल जाते हैं, ये इनकी तरजीहात नहीं रहती, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में इन्हें ये सारी चीजें दोबारा से नजर आती हैं। मैं जरा थोड़ा सा इस पे वक्त लूंगा आपका। जी जी। 1900 पाकिस्तान में सबसे मुनसिफाना इलेक्शन और नीट एंड क्लीन इलेक्शन कहलाते हैं 1970 के इलेक्शन, जिसमें भुट्टो साहब, मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो साहब और मशरकी पाकिस्तान में
मुजीब रहमान साहब ने विन किया। 1970 के इलेक्शन में भी जो सूबा महाज ने भावलपुर में एक सीट भी पीपल्स पार्टी को नहीं जीतने दी। भावलपुर सूबा महाज जो बहालिया सूबा के लिए बना था, उसने पूरे भावलपुर में सीटें विन कर ली। सही। उसके बाद ये हुआ कि भुट्टो साहब ने इक्तदार संभाला और वही लोग जो सूबे के नाम पे इक्तदार में आए थे वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। अमीरा भावलपुर गवर्नर, वजीर समाज अपना मजहबी अमूर और सईद रशीद अब्बासी साहब सेंट्रल टेक्नोलॉजी, पूरे भावलपुर से आपके रहमियार खां से सारे वुज़रा बन गए और वो जो मकसद सूबे का था वो पसे पुश्त डाल दिया गया। यहाँ तक कि कोई एक लफ्ज किसी असेंबली में सूबे का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी तरह हर इलेक्शन में जब इलेक्शन नजदीक आता है तो हमारे लीडरान सूबे का चूरन बेचने लग जाते हैं और लोग क्योंकि वालिहाना और जज्बाती तौर पे सूबे के ख्वाहिशमंद हैं, वो चाहते हैं कि हमारा सूबा बहाल हो ताकि ये हमारे मसाइल और पसमानदगी दूर हो। इसलिए वो मजबूरन, क्योंकि हर दफा एक नया चेहरा आता, कभी मोहम्मद अली दुरानी साहब आ जाते हैं, कभी आपके मखदूम साहब आ जाते हैं, कभी भावलपुर से नवाब साहबान आ जाते हैं, तो वो फिर से ट्रैप होके उनके पीछे चल पड़ते हैं। आप पिछला इलेक्शन देख लें, इसमें मुत्तहदा महाज बना जनूबी पंजाब सूबे के लिए। अच्छा, आप सूबा भावलपुर और जनूबी पंजाब सूबे का फर्क आप बतौर साफी बहुत बेहतर जानते होंगे। बहालिया सूबा एक और चीज है, जनूबी पंजाब का सूबे का क़याम एक और चीज है। जो बहालिया सूबा है वो तो एक 1 यूनिट में हमारे रियासत को एज ए सूबा काम कर रही थी, 1 यूनिट में जम कर दिया गया। और जब 1 यूनिट तोड़ा गया, जब 1 यूनिट तोड़ा तो बजाय इसके कि वो बहाल करते बाकी सूबों की तरह, उन्होंने बलोचिस्तान को नया सूबा बना दिया और भावलपुर को पंजाब में शामिल कर दिया और सूबा बहाल ना किया। तो जब से ये तहरीक लोगों में इसका एहसास और इसकी महरूमी का एहसास तो मौजूद है, उसका फायदा ये सियासतदानों ने उठाया। और इनके, मैं तो यही समझता हूँ कि भावलपुर के जज्बात से इन्होंने भरपूर फायदा उठाया और कुर्सी, इक्तदार, गवर्नर, वजारत, हर चीज उनको मिलती चली गई, तो वो असल मकसद से पीछे रह गए। अब आप ये देख लें कि अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी चंद दिन बाकी हैं। आप पिछले 5 साल में देख लें, आपको कहीं कोई सूबा तहरीक, कोई जनूबी पंजाब की तहरीक आपको नजर नहीं आई होगी। बल्कि ये जो जनूबी पंजाब का सेक्रेटरीट बनाया है, ये तो ऐसे था जैसे आसमान से गिरा खजूर मैट का। सही बात। भावलपुर से हम मुल्तान जाते हैं, मुल्तान से फिर हमें लाहौर भेज दिया जाता है। सही। एक ट्रांसफर भी यहाँ से नहीं हो पाता, एक कुछ भी नहीं हो पाता। तो इन्होंने ये किया कि एक महाज बनाया सराइकी, एक्चुअल तो वो जनूबी पंजाब की सराइकी बेल्ट थी, तो सराइकी बेल्ट का एक जनूबी पंजाब के नाम से नए सूबे का, बहालिया सूबा से हट के, ताकि सब मुत्तहद, और वो सब पीटीआई में शामिल हो गए। बिल्कुल सही। पीटीआई ने सूबा बनाने का वादा किया और जब वो इक्तदार में आए तो वो फिर वही सब का अंजाम हुआ। मैं देखता रहा हूं, मैंने इसमें अपने कॉलम में भी लिखा है, भावलपुर की एक खातून है जो भावलपुर नेशनल इत्तेहाद के नाम से भावलपुर सूबे के लिए जद्दोजहद कर रही है। वो बेचारी जहां देखो वो खड़ी होती है, मैंने उसको बहुत देखा है। चंद खवातीन, चंद वो बैनर लेके खड़ी होती है, अदरवाइज कोई 5 साल में मैंने सूबे का नाम नहीं सुना। आपके इलाके में अगर रहमियार खां में हो तो मुझे नहीं पता, कम से कम भावलपुर में सिवाय मिस आसिया कामिल हैं मिसेस, वो एक्टिव रही, उनपे दफा 144 के पर्चे भी हुए, उनपे काफी सख्ती भी हुई, लेकिन वो बेचारी लड़ती रही। अब जब सूबे का मौका, इलेक्शन का मौका आ रहा है, तो अब देखें सूबा आता कैसे है।
कागजों में फिर आएगा, जलसों में फिर आएगा, फिर आएगा, फिर सूबे का नाम लेंगे, सियासी जमातें भी लेंगी, सियासतदान भी लेंगे, क्योंकि उन्होंने हमदर्दियां हासिल करनी है। सही है। लोगों की हमदर्दियां उन्हें सूबे के नाम पे आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन अब अवेयरनेस लेवल, इसके लिए भी हमें एक आवाज उठाने की और तहरीक चलाने की अशद जरूरत है कि हम अपने इधर के जो वोटर हैं उन्हें अवेयर करें कि वो इन लोगों से मजबूर करें, इनके ऊपर अपना प्रेशर जो है किसी तरह बढ़ाएं, ठीक है, और इनसे मैं बड़ा आपको क्लियर बता रहा हूं कि नौजवान इस वक्त अवेयरनेस की हाइट पे है। आप एक बच्चे से बात करें, आप एक बड़े से बात करें, आप एक बूढ़े से बात करें, वो आपको मेरे से ज्यादा उस सियासत को समझ रहा है, वो मेरे से ज्यादा लीडरों को समझ रहा है। अब आप सोशल मीडिया पे देखें ना, तो मैंने कोई सैकड़ों पोस्टें ऐसी देखी हैं जहां लोगों ने कहा है कि जनाब अब भावलपुर सूबे का नाम लेने का वक्त आ चुका है, अब आने वाला है। अब लोग अभी से, इसका मतलब वो समझ रहे हैं, वो बात को समझ रहे हैं। हमें हमारी तहरीक से ज्यादा जो उनकी अवेयरनेस है ना, वो इस दफा मेरा अपना ख्याल यह है कि जरूर इसमें किरदार अदा करेगी। सही। चलें सर, वक्त का दामन बहुत वो क्लोज है, तो टाइम हो गया। इंशाल्लाह आगे भी आपसे फ्यूचर के अंदर भी एक चीज मैं आपको एक चीज गुजारिश करता चलूं कि जो भावलपुर या जनूबी पंजाब और भावलपुर दोनों कह लें आप, यहाँ ये हर जमात इसको अपना क्लेम करती है। पीपीपी कहती है साउथ पंजाब से हम जीतेंगे, नॉन लीग कहती है साउथ पंजाब हमारा गढ़ है, पीटीआई कहती है साउथ पंजाब से हम जीतेंगे। हर जमात जो है वो बजाय अपर पंजाब के जनूबी पंजाब से उम्मीद लगा के बैठी है कि ये लोग हमारे साथ देंगे, और इसको अवाम देख रही है। मैं फिर ये कहता हूं कि इलेक्शन जरूर होगा, वोटिंग भी जरूर होगी, और रिजल्ट भी मुख्तलिफ होंगे इंशाल्लाह। ये जितने फोरम बने हुए हैं, सर्वे हो रहे हैं, ये जितने सर्वे हो रहे हैं, आप देखिएगा शायद कोई सर्वे भी वो एज सच सही साबित नहीं होगा। चलें जी, जो भी हो हमारी दुआ है कि हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो, हमारी इस धरती के लिए अच्छा हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को देखें, हमारे मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, हमारे मुल्क को यकजहती की जरूरत है, इकट्ठे होने की जरूरत है। इलेक्शन भी होना चाहिए, फेयर एंड फ्री होना चाहिए, और सब इस तरह का इलेक्शन हो जिसे सब कबूल करें। और अगर ये कबूलियत नहीं होती तो फिर तो वही हाल रहेगा। एक जमात अगर आ जाती है, 3 जमातें मुखालिफ हैं, तो वो सिलसिला चलता रहेगा। अमन के लिए जरूरी है कि मुल्क में इस्तेहकाम हो, और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को मुस्तहकम करे और इसकी जो इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो। बहुत शुक्रिया सर जवेद साहब, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आपसे रब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह, थैंक यू।